Good morning, everyone. Good morning, sir. Can you hear me? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Good morning, sir. Good morning. Can you see me? Yes, sir. Okay. So tell me, what did we do in the last class? Okay. Tell me. So did we do this problem? This conical pendulum? Okay. गुड Hello. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ पे थे हम लास्ट क्लास में, बताइए मुझे आप लोग। सर Can मैं you hear me? स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट किया था सर। स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट किया था? यस सर, मैसिव स्ट्रिंग में। थीटा नॉट Yes, में टी का वैल्यू आया था m ओमेगा स्क्वायर l/2। थीटा वैल्यू आएगा था थीटा नहीं सर, टी। फिर हाँ। केसेस सर उसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करके 0 l/2 वाला। l/2 वाला आया था। ओके ओके, ठीक है ठीक है। और मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको ये प्रॉब्लम आपको मैंने एक होमवर्क दिया था। ट्राई किया सर बट नहीं बना सर। असाइनमेंट वो देख लेते हैं जो होमवर्क। असाइनमेंट 2.1 क्वेश्चन नंबर 60। ट्राई किया था आप लोगों ने? यस सर। यस सर। हुआ कि नहीं? नो सर। Okay. So let us look at this problem. Assignment 2.1, question number 60. This stone of mass m is tied to a string and whirled in a circular path, okay, of radius r0. Radius is given that r0 and angular speed omega naught. Okay. Okay. And this is tied to a string. Okay, this is a string. Okay. Great. At t is equal to 0, the length of the string is begun to reduce at constant rate beta. The tension in the string after time t will be. Okay. So what happens? This is at t is equal to 0. Okay. And at t is equal to 0, what happens is that the length of the string. Okay. So length of the string is r. So dr by dt is given as minus beta. Starts to decreasing. Clear? Okay. आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे क्या? अभी तक नींद नहीं खुली आप लोगों की? नो सर। यस Yes, sir. है ना? Okay. So dr by dt is minus beta. Okay. So this is initially it is given as r0 and omega naught. Okay. Yes. So now tell me, this object is tied to a string. Okay. So the only force which is acting on this object is Fr. Is it clear? Yes, sir. Yes, That sir. means F theta is what? Theta. F theta is 0. Theta is 0. Okay. Because the only force which is acting is the tension force by the string. So F theta is 0. That means A theta is 0. Okay. And what is A theta? A theta is 1 by r d by dt of r square into omega.
this is equal to 0. Okay, so at any time t, r square omega is equal to constant. Okay, so at one particular point r naught and omega naught is given. For example, then r square omega at any time t is equal to r naught square omega naught. This is clear? Yes, sir. Okay. Now we have to find that what is the tension in the string after time t. Okay. So now tell me, on this string tension will work centerward. Okay. So Yes, just sir. write Fr is equal to m into Ar. What is Fr? T is the magnitude and minus is the direction. M into what is Ar? AR is R double dot, which is R double dot. यहाँ से क्या होगा बताइए? R dot तो minus beta है, but R double dot क्या है? Zero हो Sir, जाएगा? zero. Because it is constant. Okay. So there will be only term which is left is minus omega square R. Okay. So from here we will get T is equal to M omega square into R. Okay. So now there is in tension there are two terms. One is omega and one is R. Okay. So using this equation, we can write omega square is equal to R naught to the power 4 omega naught to the power omega naught square divided by R to the power 4. So from here, इसको जो है यहाँ पर रख दो, T is equal to M into omega square. So on the top it will be R naught square to the power 4 omega naught square divided by R cube. Okay. So this is T. Okay. So now M is constant, R naught is given, omega naught is given. The only variable is R. Okay. Now we have this equation, dr by dt is equal to minus beta. Okay. So from this equation we can write, if we solve this equation, dr is equal to minus beta into dt. Okay. Okay. So suppose that it goes from 0 to t. At t is equal to 0, what is the value of r? R naught and r. R. Okay. So from here we'll get r minus r naught is equal to minus beta into t. So from here we'll get r is equal to r naught minus beta into t. Okay. So now put r naught into tension. So t will get m into r naught to the power 4 omega naught square divided by r naught minus beta t q. Okay. This is the answer. So what will be the answer? D. D will be the answer. Okay, write it down. So as I told you in the last class that whenever there is only centripetal force, for example, there is only string attached to a particle and the length is changing, then this analysis is very important because f theta is equal to 0. Okay. So this I did in the last class also. R square omega is equal to constant. I told you that when R is more, omega is less. When we pull the string inwards, R starts to decrease, but at the same time, omega starts to increase. You must have noticed in the string, right? Yes, sir. Yes, sir. So whenever there is only centripetal force present, try to use this formula. This is very important. Okay. सर यहाँ लेफ्ट के साइड में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर जो किए हैं, तो इसमें स्क्वायर दोनों तरफ बोथ ऑफ स्क्वायर कर दिए हैं क्या? हाँ हाँ, बस वही किया. अच्छा, ओके सर. Okay.
और कौन सा दिया था मैंने होमवर्क में, बताइए। अपार्ट फ्रॉम दिट क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क में दिया था मैंने, यस सर, और 7 भी। असाइनमेंट 2.4 का, 2 असाइनमेंट 6 2.4 5 क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ओके, नोट डाउन कर लिया सबने ये? Yes, sir. yes Oh. sir. So now let us talk about assignment 2.4 question number 6. A particle of mass m attached to a light string is moving in a circle of radius r naught, okay, with constant angular velocity omega naught. At t is equal to 0, the string is pulled slowly with constant speed v. The angular speed of the particle after time t will be. This is the same question, similar question. Okay. So initially at t is equal to 0, what is given? R naught and omega naught. Now it is also given that this string is pulled with constant speed v naught. ठीक है? So जब string को यहां से pull कर दिया जाएगा नीचे v से, okay? So now tell me, what will be dr by dt? It will be minus v. Yes sir. Okay, dr by dt will be minus v. Okay, so from here we will get dr is equal to minus v into dt. So from here we'll get t is equal to 0 to some time t. Okay, and at t is equal to 0, the radius is given as r naught. Suppose at t is equal to t, the radius is some r. So r minus r naught is equal to minus v into t. So from here we'll get r is equal to r naught minus v into t. Okay. Now we have to find omega at some particular time. So now tell me, by the similar analysis in the last question, f theta is equal to 0. This implies that a theta is equal to 0. This implies that omega r square omega is equal to constant. So r square omega is r naught square omega naught square omega naught. Correct? Yes, sir. So from here we will get omega is equal to r naught by r square into omega naught. So from here we will get omega is equal to r naught by r naught minus vt square into omega naught. Okay. So the answer will be answer will be C, right? Okay. Yes. Okay. Now in the seventh part, in the seventh question, it is written that what is the tension required to pull the string? So in the same question, just write down this equation. Fr is equal to m into ar. Okay. And Fr is nothing but minus t is equal to m into. From here, dr by dt is equal to v. So r dot is v, but r double dot is 0. So ar is minus omega square r. Okay. So t will be m omega square into r. And we can put r from here. So t will be m into an omega from here. M into omega naught square means r naught
divided by r naught minus vt square into omega naught square, and r is r naught minus vt. Okay, so from here we will get t is equal to m omega naught square into r naught square divided by r naught minus vt. So what will be the answer? M omega naught square r naught square सर इसका पावर 4 हो जाएगा बीच में, आर किसका? नॉट ओवर आर नॉट माइनस वीटी पावर 4, अ, एम के बाद वाला टर्म अच्छा अच्छा, यहाँ पर ऊपर सर, ऊपर सेकंड लास्ट स्टेप। यहाँ पर हाँ जी सर, पावर 4 हो it will जाएगा ना be सर। r naught square. Okay, okay. यहाँ पे ऑलरेडी ओमेगा It is स्क्वायर 4, दिया। right? Yeah. You're saying this, right? Yes, sir. यस सर। So from here we'll get m omega naught square r naught to the power 4, 4. and here it will be cube, right? Yes, sir. Okay. So क्या आंसर हो जाएगा? Option B. Option B. r naught to the power 4. हाँ, option B. क्वेश्चन नंबर 5 सर। सर क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपने dr by dt इज इक्वल टू माइनस वी लिखा है, तो सर माइनस क्यों लिखा है? देखिए उसने बोला ना कि द स्ट्रिंग इज पुल्ड स्लोली, तो किस डायरेक्शन में पुल किया गया है? इस डायरेक्शन में। तो V से पुल करेंगे, तो जब स्ट्रिंग को पुल करेंगे तो रेडियस घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना, घटेगा सर। समझ गए? Yes. तो आप इस फिगर को समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये जो सर्कल है हॉरिजॉन्टल में है, और फिर यहाँ से एक स्ट्रिंग जो है नीचे जा रही है, तो उस स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं, तो सर्कल की रेडियस धीरे धीरे कम होगी ना। समझ के बात आप? यस सर। तो इसीलिए dr by dt, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, dr by dt इज माइनस बीटा, तो यहाँ पर ये इस तरह का ये है। मीन्स रेडियस जो है कहाँ पर क्या बोल रहे हैं आप अजी? मैं बोल रहा हूँ कि जो 6 नंबर क्वेश्चन में जो मतलब फिगर बनाया गया है, हाँ यस सर, उसमें हाँ। मतलब जो स्ट्रिंग रेडियस है और जो हाँ। हैंगिंग रेडियस भी जो है वो हाँ। दोनों सेम ही स्ट्रिंग है, तभी तो खींचा जा रहा है। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं ना आप। और कौन सा दिया था इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो आई गिव। यस सर, Yes. 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। सर 6 में एक थोड़ा सा और समझ में नहीं आ रहा। देखिए 6 में मैंने क्या बोला आपको कि जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन dr by dt is given as minus v. यस सर। From here we'll get r is equal to r naught minus vt. Just solve the Sir, differential equation. पुल करने की जो इसकी पुल करने की वेलोसिटी है वो दी हुई है ना सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस थोड़ा ना दिया। नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि देख स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग के दो पार्ट हैं। एक तो पार्ट है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है सर्कुलर मोशन में, और दूसरा Yes. पार्ट है जो नीचे जो है लटक रहा है इस तरह से, है ना? तो स्ट्रिंग का जो नीचे वाला पार्ट को हम खींचेंगे तो उसकी रेडियस भी तो उसी रेट से कम होगी ना। सर यस सर, समझ गए। ठीक है, समझ गए बात आप? यस सर। सर इसमें ए थीटा 0 क्यों होगा? ए थीटा 0 क्यों होगा? मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि स्ट्रिंग में टेंशन है, तो टेंशन केवल किधर है? रेडियल डायरेक्शन में ना। यस सर। फोर्स इज ओनली इन द रेडियल डायरेक्शन, सेम एज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। सर इधर क्या? पार्टिकल का मोशन स्पाइरल मोशन होगा क्या सर फिर टाइम के साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल सही करे। थोड़ा मतलब सर्कुलर है और आराम से खींच रहे हैं, तो सर्कल का जो है अंदर होते जाएगा, सर्कल धीरे धीरे अंदर, और जैसे जैसे अंदर होगा वैसे वैसे रेडियस क्या होगी, ओमेगा क्या है, बढ़ेगा, यस सर। है ना? क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया था मैंने। यस सर। ओके, तो ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, हो गया। यस। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि in the figure shown a particle of mass m this is assignment 2.4 question number 5.
In the figure shown, a particle of mass m attached to light string moves on a smooth horizontal table. ठीक है, तो यहाँ पर एक मास m है और यहाँ से जो है नीचे जा रहा है ये इधर कैपिटल मास m. Okay, this is capital mass m and this is small mass m. Okay, with constant angular momentum L. Okay, so ये L से जा रहा है, घूम रहा है ये. Okay. The string passes through a hole on the table and block of mass m hangs from it. ठीक है, तो एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन जैसी सिचुएशन है. समझ गए बात कि एक तो है स्ट्रिंग जो है सर्कुलर मोशन में इन्वॉल्व है और एक नीचे लटक रहा है जो कि m से अटैच्ड है, हैंगिंग विथ m. The string passes, okay. If r be the distance of m from hole, so this distance is given as r. Okay, at any instant of time, the acceleration of mass m is okay. ठीक है, तो अब बताइए मुझे, ये पिक्चर सबको समझ में आ गया ना? क्या है ये? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पे जो है स्मॉल मास m जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट द स्ट्रिंग इज हैंग्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन आल्सो, और यहाँ पर जो है कैपिटल मास m जो है उसके साथ अटैच्ड है. ठीक है, ओके. नाउ टेल मी, वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ओके, so suppose that this block is going with acceleration a. समझ गए बात आप? सर. ओके, अच्छा अब बताइए मुझे, अगर ये इधर a से जा रहा है तो ये भी इधर a से जाएगा यस सर. उसी स्ट्रिंग से कट. इसका मतलब क्या है कि r डबल डॉट क्या होगा? प्लस ए होगा, माइनस ए होगा? सर माइनस है. माइनस ए होगा. जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में नीचे v से जा रहा था तो r डॉट माइनस v था, इसी तरह से लास्ट नीचे ये नीचे एक्सेलरेशन a से जा रहा है तो यहाँ पर r डबल डॉट माइनस होगा a होगा. ठीक है, ओके. अब दूसरी इंफॉर्मेशन इसने दी है कि L के बारे में. तो L जो है, L होता है m आई ओमेगा सर. क्या हुआ? एल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा. तो हाँ, लिनियर तो L जो है होता है सर्कुलर मोशन में, आप ये भी लिख सकते हैं आई ओमेगा, है ना? तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. क्लियर बस सबको ये? बट द जनरल फॉर्मूला इज दिस. हम एंगुलर मोमेंटम करेंगे तब देखेंगे m v क्रॉस r. पता है आप लोगों को ये फॉर्मूला? यस सर. ओके, सो व्हेन वील डू एंगुलर मोमेंटम तो हम इसको डिटेल में देखेंगे, बट दिस इज L इज इक्वल टू m r स्क्वायर इंटू ओमेगा. ओके, सो अब इस ओके, सो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एक इक्वेशन हमारे पास ये है. ओके, अच्छा अब ये जो है नीचे जा रहा है तो इस ब्लॉक के ऊपर बताइए क्या क्या फोर्सेस लगेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज mg which is downwards. Okay, there is a tension force which is upward. टेंशन अपवर्ड लगेगा कि नहीं इसमें? ओके, सो इस ब्लॉक के ऊपर लगा दीजिए न्यूटन्स लॉ, F बराबर m है. F बराबर m अगर लगाएंगे तो डाउनवर्ड्स विल बी mg माइनस t is equal to m into a. Okay, so this is another equation. This is equation number 2, and we have to find the acceleration of m. ठीक है, so t और a के बीच में एक acceleration आ गया. अब यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल, एक t है और एक a है. ठीक है, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी. ओके, सो वो इक्वेशन हमें कहाँ से मिल जाएगी? देखिए, जो स्मॉल मास m है उसके ऊपर लगाइए Fr इज इक्वल टू m इंटू AR. On this small m, Fr is equal to m into AR. So what will be the Fr on small m? It will be just minus t. Okay, the tension is working in this direction. Clear?
is equal to m into. What is AR? माइनस is- सर रेडियल नहीं, AR में एक टर्म ये भी होता है ना, R डबल डॉट, वो आप कैसे भूल गए? Yes, sir. R double dot plus. देखिए R डबल डॉट यहाँ पर नॉन जीरो है, ये बात आपको याद रखना है। अभी तक जो भी सवाल किए थे हमने उसमें R डबल डॉट जीरो था, इसीलिए बाय डिफॉल्ट हमारा मोड ये हो चुका है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर R, बट देयर इज अ R डबल डॉट ऑल्सो, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। क्लियर बात? Yes, sir. माइनस क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर R. Okay, so from here we'll get T is equal to minus M, and R double dot is minus A minus omega square into R. Okay, so from here we'll get T is equal to M A plus omega square R. This is another equation. Okay, and the answer is given in the form of L and R. Okay, so from equation 2 and 3 we have to find the acceleration. So do this, 2 plus 3. Okay, so the tension will be eliminated. So from here we'll get mg is equal to m plus small m into A plus m omega square R. Okay, now the R is given but omega is not given and L is given. So from here we'll get L is omega is equal to L by mr square. Just put it in this equation. So from here we'll get mg is equal to m plus m into acceleration plus m into omega square is nothing but L square divided by m square R to the power 4 into R. Okay, so from here we'll get A is equal to mg minus L square over m R cube divided by m plus m. Okay, so the answer will be D. सर इस केस में ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा ना, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है? इस केस में ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन जीरो क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि क्योंकि सिर्फ टेंशन फोर्स ही तो लग रहा है ना सर। लेकिन सर जो टेंशन फोर्स लग रहा है तो उसमें जो होता है ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन जो होता है उसको ये डायरेक्शन नहीं, टेंशन बताइए, टेंशन केवल आर कैप डायरेक्शन में लग रहा है ना, माइनस आर कैप डायरेक्शन में। यस सर। ओके, सो टेंजेंशियल फोर्स तो यहाँ पर भी जीरो है, इसीलिए तो देखिए, इसीलिए तो यहाँ पर ये वाला टर्म आर स्क्वायर ओमेगा कांस्टेंट है L by m। हाँ सर। ठीक है सर, इधर टेंशन का डायरेक्शन नेगेटिव क्यों ले गया सर क्वेश्चन? यार ये फिर से आप वही पूछ रहे बात, टेंशन की फोर्स इधर है ना और आर कैप डायरेक्शन इधर है, तो एफ आर कैप डायरेक्शन में होता है तो टी तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इधर है तो माइनस टी आएगा। सर स्मॉल एम सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कैपिटल एम लिनियर मोशन कैसे कर सकता है? कैपिटल एम सर नीचे है, इसके स्ट्रिंग के साथ नीचे लटका हुआ है कैपिटल एम, तो नीचे जा रहा है। क्या है कि प्लेन है एक, देयर इज अ प्लेन, ऑन प्लेन देयर इज अ स्मॉल एम व्हिच इज डूइंग सर्कुलर मोशन, जो कि स्ट्रिंग से अटैच्ड है, और वो स्ट्रिंग फिर सेंटर से नीचे जा रही है और उस मास वहां पर कैपिटल एम अटैच्ड है उससे, तो वो तो नीचे ही जाएगा ना, वो क्यों सर्कुलर मोशन करेगा? मीन्स जो स्मॉल मास डू स्पाइरल मोशन। हाँ, स्मॉल मास एम जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा और सर्कुलर मोशन नीचे अंदर होता जाएगा, मतलब स्पाइरल होता जाएगा।
और कोई सा होमवर्क दिया था क्या मैंने? नो सर। देखिए ये डाउट मुझे समझ में आता है अभी तक क्यों आ रहा है कि टी को सर माइनस टी क्यों लिखा। दिस इज नॉट अ डाउट यू सपोज टू आस्क यू, क्योंकि हमने 5-7 बार कर लिया इसको कि टी इधर है और आर कैप इधर है तो माइनस टी आएगा। अभी तक ये डाउट कैसे? अभी के क्वेश्चन में हमने 2-3 सवाल के तीनों में हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया, एफ आर इज माइनस जो भी है। तो या तो इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। और कोई होमवर्क में असाइनमेंट में प्रॉब्लम दिया था? 3 ही दिए थे। यस सर, लास्ट क्लास में किया था। Okay. Now we will move to the next part, which is assignment. Two point. Okay. लिख लिया सब? लिख लिया सब लोगों ने ये? सर Yes. for sir angular velocity or angular acceleration circular motion are necessary. Angular velocity and angular acceleration circular motion is not necessary. किसने बोला? वो प्लेन पोलर में भी तो वही बोलते थे हम। मतलब एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोशन के लिए जो सर्कुलर पाथ है वो पार्टिकल का सर्कुलर पाथ होना कंपलसरी है या फिर किसी और केस में भी आ सकता है? प्लेन पोलर में भी तो होता है ना एंगुलर वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक क्या होता है? एक टेंजेंशियल होता है, एक रेडियल आता है। हाँ, तो टेंजेंशियल वाला क्या आता है? ओमेगा इंटू आर। यस। ओके, लिख लिया सब लोगों ने ये? यस सर। यस सर। ओके, अब आप लोग एक बार बताइए मुझे असाइनमेंट 2.3 क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन आपको पता है क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन, यस सर। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है? यस सर। तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड मींस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है? अब आप 11 कीजिए, हम देखते हैं आपको आता है कि नहीं। हम कराते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11 असाइनमेंट 2.3। ओके, सो ये जो है यहां से पार्टिकल अटैच है, ओके, और स्फीयर को है थ्रेड जो है L है और इसको वेलोसिटी v से फेंका गया है। तो कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए ताकि ये यहां तक पहुंच जाए? दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। क्या आएगा बताइए आंसर? बताइए क्या आएगा? √/g है। √2gl। देखिए, so this is initial position and this is final position. तो एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है? अब सपोज दैट हम इसको जो है रेफरेंस पॉइंट बोल लेते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं, मतलब द पोटेंशियल हियर is considered as 0.
सो बताइए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, हाफ इंटू एम इंटू v स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज v. व्हाट विल बी द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताइए मुझे. सर जीरो. जीरो, बिकॉज रेफरेंस पॉइंट हमने ये लिया है. ओके, इट इज जस्ट रीचिंग दिस पॉइंट. इसका मतलब है कि वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जीरो. जीरो. सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी फाइनल, जीरो. पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होता है, mgh. यस. तो पार्टिकल ने कितना हाइट चला, l हाइट चला. सर So from here we will get m and m will be cancelled. From here we will get v is equal to under root 2gl. Okay. So इतनी वेलोसिटी से फेंका जाना चाहिए ताकि वो यहां तक पहुंच सके. अब आप लोग ट्राई कीजिए इसी का असाइनमेंट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई कीजिए एक बार. Question number 14, assignment 2.3. A body of mass m kg is rotating in a vertical circle. Voila. और आंसर लिखिए सब लोग अपने कमेंट सेक्शंस में. क्या आएगा आंसर बताइए. टू mgr आएगा. सचिन, शिवम, सुमन, दीपांशु. Okay. So what is the question? The question is that a body of mass m is rotating in a vertical circle at the end of a string of length r meters. The difference between kinetic energy at the top and the bottom of the circle is. Okay. So यहाँ से एक strings attached है particle. ठीक है. This is bottom. And this is top. Okay. So energy conservation कहता है कि kinetic energy, this is bottom को B बोल देते हैं और top को T बोल देते हैं. Kinetic energy at the bottom plus potential energy at the bottom is equal to kinetic energy at the top plus potential energy at the top. Okay, so we need to find kinetic energy top minus kinetic energy bottom. This is equal to potential energy, kinetic energy
bottom minus kinetic energy top is equal to potential energy top minus potential energy bottom. Okay. Now suppose that this is the reference point. Okay. Now tell me, first of all, what is the potential energy at the bottom? 0. 0, जी because it is the reference point. What is the potential energy at the top? It is m into g G into into h. H is what? R plus one more R. 2R. 2R. So it will be 2 mg into R. Okay. Now we will do one more problem. लिख लिया सब लोगों ने ये? अब आप लोग मुझे बताइए, सपोज दैट देयर इज अ स्ट्रिंग, उससे एक मास अटैच्ड है ना, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये मास अटैच्ड है m का, स्ट्रिंग का लेंथ है l, और सपोज ये v0 से जा रहा है, ठीक है? दिस इज द इनिशियल पॉइंट जो है लोवेस्ट है, लोवेस्ट पॉइंट. सो आपका पार्ट ए है, कैलकुलेट टेंशन in the string. Calculate tension in the string at initial point. मतलब ये आपको जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां पर टेंशन निकालना है. क्या होगा बताइए? यहां पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो ऊपर लग रहा है टेंशन, लग रहा है, Yes, sir. नीचे लग रहा है mg. Okay, so we'll just write it down. Fr is equal to m into ar. Okay, so Fr कितना होगा? mg तो पॉजिटिव में है और t नेगेटिव में है ना, आर के इधर ही तो है ना इसका, इज इक्वल टू m इंटू ar. क्या होगा? माइनस v नॉट स्क्वायर बाय l. Okay, so from here we will get t is equal to mg plus m v naught square by l. Clear everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब पार्ट बी लिखिए इसका. तो लोवेस्ट पॉइंट से तो जो है आगे बढ़ चुका है ना, ये लोवेस्ट पॉइंट था. अब आगे बढ़ा तो सपोज ये एंगल थीटा पर पहुंच गया है ना? यहीं से आगे बढ़ के यहां पर जब था तो उसका वी नॉट था, है ना, और यहां पर हुआ तो कुछ वी हो जाएगा फिर. तो आपको निकालना है इसका पार्ट बी, लिखिए इसी का. कैलकुलेट टेंशन when string makes an angle theta. Angle theta, ये थीटा बना रहा है. तो अब टेंशन निकालिए आप लोग, निकालिए सब लोग. इनिशियल वहां से हमने उसको फेंका है वी नॉट से, and after some point of time it will go to angle theta. So at that point आप टेंशन निकालिए.
ओके, सो यहाँ पर अगर टेंशन अगर इधर है T, तो एक तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंशन T लग रहा है जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन, एक और फोर्स इधर mg भी लग रहा है इसके ऊपर। यस सर। ओके, अब बताइए mg इधर है तो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है? ये mg थीटा है cos तो theta ये cos थीटा। mg cos सर। ठीक है, तो अब यहां से लगाएंगे Fr इज इक्वल टू MAR। तो बताइए मुझे Fr क्या होगा? आर कैप, ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आर कैप तो इधर है, तो Fr क्या होगा? mg mg cos theta। cos थीटा तो पॉजिटिव में होगा और नेगेटिव में हो जाएगा टेंशन। Yes, sir. क्लियर? yes sir This is equal to m into AR is same minus V square by L ना, यहाँ पर V है वेलोसिटी, तो टेंशन हो जाएगा हमारा mg cos थीटा प्लस m V square by L, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर m दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, बट v नहीं दिया हुआ है। अब बताइए यहाँ पर v नॉट है तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कंजर्वेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट है सपोज, और ये फाइनल है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा जल्दी बताइए मुझे? 0 जीरो होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, half m v naught square mg square। हाफ m v नॉट स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट लेता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या होगा? 0। होता है वो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा? वेलोसिटी v है, हाफ एम पी स्क्वायर। half m v square पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा बताइए? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा कि ये पार्टिकल जो है इतनी हाइट चल चुका है, तो ये h क्या है? L minus cos थीटा। mg इंटू h क्या है? L टोटल तो माइनस एल r था, cos थीटा। टोटल तो r था, मतलब l था टोटल। ठीक है, और उसमें से ये कितना है? l cos थीटा है, यस सर। l इंटू 1 माइनस cos थीटा। सो यहां से हमारा v स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए? v स्क्वायर आ जाएगा हमारा, m तो कैंसिल हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर माइनस 2 gl इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई, जो कि वेलोसिटी हमारी आ चुकी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 2 को 1 में रख दीजिए वेलोसिटी को, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। सो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m v स्क्वायर बाय l, तो v स्क्वायर यहां से रखें तो क्या आएगा? पहला वाला टर्म तो हो जाएगा m v नॉट स्क्वायर बाय l, फिर 2gl वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस में हो जाएगा mg तो 2mg, ओके, प्लस 2mg cos थीटा। सो यहां से हमारा t जो है, t विल बी m v नॉट स्क्वायर बाय l माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। तो ये हमारा टेंशन हो जाएगा। सर हाँ बताइए। सर इधर टेंशन का कंपोनेंट नहीं कर लेके नहीं कर सकते हैं?
क्या नहीं कर सकते? सर टेंशन का कंपोनेंट लेके अलग mg। नहीं, टेंशन इधर लग रहा है तो टेंशन का कंपोनेंट लेके क्या करेंगे आप? मतलब t cos थीटा इज इक्वल टू mg इक्वल टू करके। नहीं, देखिए t cos थीटा इज इक्वल टू mg कब लगाते थे? जब वर्टिकल मोशन नहीं हो, वर्टिकल में एफ नेट 0, लेकिन यहाँ पर पेंडुलम इधर जा रहा है तो वर्टिकल में तो ऊपर जा रहा है ना, यस सर। तो वर्टिकल मोशन 0 है क्या? नहीं वर्टिकल मोशन 0 नहीं है तो वर्टिकल फोर्स भी नेट 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg नहीं होगा। समझ के बाद आप क्यों नहीं लगा? अगर ये स्टेशनरी होता यहाँ पे तो हम लगा सकते थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस सर, वो तो पेंडुलम वाले में लगाया था ना, तो मैं सोच रहा था। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, समझ गए आप क्यों नहीं लगा सकते? यस सर, मोशन हो रहा है इसमें। हाँ, मोशन हो रहा है वाई डायरेक्शन में। सर हाँ जी, सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला एक बार बता दीजिएगा। देखिए इनिशियल ये रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज क्लियर। यस सर। ओके, फ्रॉम हियर दिस हाइट इज कवर्ड अप टू दिस पॉइंट। यस सर। तो दिस मच हाइट कितना होगा? टोटल लेंथ माइनस दिस। ओके, यस यस टोटल कितना है? एल है, और ये कितना है? एल कॉस थीटा। ठीक है, तो एल माइनस एल कॉस थीटा, तो एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यस सर यहाँ पे ए थीटा नॉन जीरो होगा ना? बिल्कुल सही कहा आपने, ए थीटा नॉन जीरो होगा। क्योंकि सर ए थीटा क्या होता है? ए थीटा होता है डी बाई डी टी ऑफ स्पीड, है ना? Yes, और sir. स्पीड यहाँ पे एक समान है क्या? कम हो रही है ना? यस Yes. सर। ठीक है, ओके, लिख लिया सब लोगों ने ये? Yes. ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सपोज देख एक स्ट्रिंग है ना, और ये कंप्लीट सर्कल कर रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट सर्कल कर रहा है, और दिस इज सपोज पॉइंट 1 जो कि टॉप पे है, और दिस इज पॉइंट 2 जो कि बॉटम पे है। तो यहाँ पर जो है इसका रेडियस तो दिया हुआ है आर, ओके, बट हियर suppose velocity is v1 and tension is t1. Here velocity is v2 and tension is t2. ठीक है, तो इसका पहला पार्ट लिखिए आप ए लिखिए। ठीक है, तो समझ गए ना आप क्या कर रहा है? स्ट्रिंग से जो है वर्टिकल में पार्टिकल को घुमा रहे हैं। तो पहला पार्ट लिखिए, कैलकुलेट the minimum speed v1 at topmost point so that the string is not slacked. Slacked का मतलब होता है कि उसका स्ट्रिंग ढीली ना हो जाए। विदाउट स्ट्रिंग बीइंग slacked मतलब कि बिना स्ट्रिंग के ढीले हुए वो मोशन कर रहा है। समझ गए बात? ये निकालना है आपको। तो देखिए अब टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं एक बार। तो कंसीडर पॉइंट 1। पॉइंट 1 की अगर बात करेंगे तो पॉइंट 1 पे जो है लगा लो एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ए आर। तो पॉइंट 1 पे जो है एफ आर क्या होगा बताइए? एम जी किधर लगेगा? सर नीचे की तरफ। नीचे और टेंशन किधर है?
नीचे नीचे की तरफ। मतलब दोनों जो है माइनस आर कैप में है, मतलब माइनस एम जी प्लस टी। समझ गए बात सब लोग? क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, इज इक्वल टू एम इंटू माइनस V1 स्क्वायर बाय आर, और ये T1 है यहाँ पर टेंशन। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट T1 इज इक्वल टू mg प्लस m V1 स्क्वायर बाय आर। T1 इज इक्वल टू माइनस mg, T1 इतना आ गया। अब हमें निकालना है कि मिनिमम स्पीड ताकि वो स्लैक ना हो, मतलब ढीला ना हो। तो जस्ट ढीला होगा वो वाली स्पीड निकाल लेंगे हम, है ना? तो जब ढीला होगा तब टेंशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? सो फ्रॉम हियर विल गेट V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GR। मतलब कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए ताकि वो स्ट्रिंग ढीली ना हो। इससे कम होगी तो ढीली हो जाएगी स्ट्रिंग, इससे ज्यादा होगी तो टाइट रहेगी, और इस पॉइंट पे जो है जस्ट ढीली होगी, मतलब टेंशन 0 होगा। सर जो इसमें टॉप का सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सर इसका वेट कवर कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो है mg प्लस T1। यहाँ पर आर कैप जो है किधर है? ऊपर की तरफ है, यस सर। तो mg और T1 दोनों ही माइनस आर कैप में है, तो इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, क्लियर बात सबको ये? इसमें स्ट्रिंग को अगर ढीला करते हैं तो टेंशन 0 हो जाएगा ना सर? हाँ, ओके। अब इसी में तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर कोई बॉल है वो कंप्लीट सर्कल कर रही है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो है विदाउट बीइंग स्लैक्ड कंप्लीट करती है सर्कल को, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी में दूसरा पार्ट लिखिए, कैलकुलेट मिनिमम स्पीड V2 at lowest point calculate minimum speed V2 at lowest point so that the particle completes full circle without string being slacked। ठीक है, तो V1 min तो निकल गया, V2 min निकालना है। ठीक है, तो किससे निकाल लेंगे हम? सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन से, यस सर। है ना? तो एनर्जी कंजर्वेशन से अगर हम देखेंगे तो बताइए क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी एट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2। तो काइनेटिक एनर्जी एट 1 कितना है? मिनिमम निकालना है ना हमें, तो हाफ इंटू m इंटू V1 min स्क्वायर प्लस, अब रेफरेंस पॉइंट की बात कर लें तो सपोज रेफरेंस पॉइंट ये है, तो बताइए 1 पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सर 2 mg। 2 mgr, क्योंकि 2r है हाइट, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 कितना है? हाफ m, V2 min निकालना है तो V2 min स्क्वायर प्लस 2 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सर 0। वहाँ पे रेफरेंस 0 पॉइंट ही है 2, तो 0 है। तो यहां से आ जाएगा V1 min स्क्वायर कितना है? रूट GR, तो ये m GR बाय 2 प्लस 2m GR इज इक्वल टू हाफ m V2 min स्क्वायर, है ना? तो यहां से आएगा V2 min कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 बाय
2 √5 GR। तो √5 GR। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रख सकें तो अच्छा है। ठीक है, मतलब कि पार्टिकल को घुमा रहे हैं तो नीचे इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए उसकी, तब जाकर वो कंप्लीट करेगा सर्कल को, है ना। सर यस। सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर हम V1 देते हैं और हाँ। वो मतलब वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है क्या कि वो पूरा एक फुल सर्कल कंप्लीट कर लेगा, या फिर कहीं बीच में ही ऑफ द पाथ ना हो जाए? नहीं नहीं, V1 देते हैं तो फुल सर्कल की ही कंडीशन है ये। सर वो मतलब ये थोड़ा आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे कि वो फुल सर्कल क्यों कंप्लीट करेगा, बीच में क्यों नहीं होगा ड्रॉप? क्योंकि क्योंकि टेंशन 0 होने की संभावना सबसे ज्यादा यहाँ पे हाँ सर। है ना, इसीलिए V1 जो है √GR जो है वो कंप्लीट सर्कल की ही कंडीशन, मतलब कि कंप्लीट सर्कल करने के लिए नीचे सबसे ज्यादा सबसे कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए स्पीड, और ऊपर इतनी कम से कम होनी चाहिए। तो नीचे इतनी होगी तो ऊपर तो इतनी हो ही जाएगी, है ना। हाँ सर, क्योंकि उसी का यूज करके हमने हाँ, निकाला उसी है। का यूज करके हमने निकाला है। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट में 0 हो जाएगा? क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी हाँ, टॉप पे टॉप टॉप पे पे 0 हो 0 जाएगा? थोड़ी, टॉप पे 0 थोड़ी लिखा मैंने, टॉप पे तो 2 mgr है। तो उधर अच्छा E1 E2 नीचे से माने हैं? 1 जो है टॉप पॉइंट है मेरा। अच्छा अच्छा ठीक है। मतलब सर √GR से कम होगा तो फिर बॉडी कंप्लीट सर्कल नहीं करेगा हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप, मतलब ऊपर ऊपर अगर √GR है तो कंप्लीट सर्कल कर लेगा वो। यस सर। तो अब इसमें आप लोग, इनइक्वालिटी साइन भी दे देते हैं फिर, क्या हुआ? मतलब इसमें इनइक्वालिटी साइन भी दे देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू फिर। हाँ, मतलब मिनिमम पूछा है ना मैंने कि मिनिमम स्पीड, तो इससे ज्यादा होगा ना तो कंप्लीट करेगा वो। अब आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, असाइनमेंट 2. हाँ, ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिए। क्या होमवर्क में कर लीजिएगा? ये लिख लिया सबने? सर हो गया। यस सर। आप लोग होमवर्क में कीजिएगा असाइनमेंट 2.3 क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 32, 33, 35, असाइनमेंट 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, 8, NIT नंबर 2, ये आप ट्राई कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, ठीक है, ओके। इससे आपके सर्कुलर मोशन के जो भी प्रॉब्लम्स है आपके हो जाएंगे कवर। Just 1 minute now.
ओके तो अब देखिए सर्कुलर मोशन में हम आगे चलते हैं. So till now we were doing circular motion using tension force. Okay, so first what we did some general dynamics in circular motion, and after that we are doing one by one all the forces which can correspond, which can cause the circular motion. Okay, so now we will study one more force which can cause a circular motion. So now we'll study circular motion. And in that, the normal force is acting as a centripetal force. Okay, normal force. Okay, बात क्लियर है सबको? क्या करने वाले हैं हम? अभी तक हम क्या कर रहे थे? सर्कुलर मोशन कर रहे थे जिसमें कि टेंशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन. ओके, अब हम क्या करेंगे कि नॉर्मल फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन. तो इसको एक प्रॉब्लम से समझते हैं हम. सपोज एक कोन दिया हुआ है, ठीक है, एक कोन दिया हुआ है एंड this angle is alpha. This angle is alpha. Okay, and this particle is doing a circular motion inside. Particle is doing a circular motion inside. Okay, at an angle alpha. So and it is with omega. So आपको पता करना है calculate ओमेगा. तो आपको अल्फा दिया हुआ है, नीचे तो ग्रेविटी लगेगी ही. Okay? और ये डिस्टेंस आपको दी हुई है r. ठीक है, तो r और अल्फा आपको गिवन है और ओमेगा निकालना है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर है? एक कोन है, कोनिकल शेप है, उसके अंदर किसी एक मान लो बॉल को रखा है छोटा और उसको घुमाया जा रहा है. ठीक है, बॉल जो है घूम रही है, तो बॉल घूम रही है तो अल्फा एंगल जो है कोन का है और r जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है ऑन विच द बॉल इज डूइंग सर्कुलर मोशन. तो आपको निकालना है ओमेगा. ठीक है, अब बताइए मुझे कि इस बॉल पे जो घूम रही है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे. एक तो इसके ऊपर mg तो होगा ही, सीधी सी बात है. सर नॉर्मल फोर्स भी आएगा. एक फोर्स क्या होगा जो कि ये सरफेस बॉल के ऊपर लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा. तो नॉर्मल लगाएगा तो नॉर्मल किधर होता है, डायरेक्शन नॉर्मल की परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो सरफेस इधर है तो परपेंडिकुलर ये है n. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो नॉर्मल फोर्स जो है इधर लग रहा है और mg इधर है. ठीक है, अब बताइए नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है तो एक बार देख लेते हैं. ये एंगल अगर अल्फा है तो ये अल्फा है तो ये होगा 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस होगा तो ये भी अल्फा होगा. तो नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n sin अल्फा. ओके, एंड दिस कंपोनेंट विल बी n cos अल्फा. ठीक है, अब बताइए पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पार्टिकल का मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है. यस सर. मतलब पार्टिकल का मोशन वाई डायरेक्शन में कुछ है क्या? नहीं सर, जीरो हो नहीं है. जाएगा. तो नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन. इसका मतलब है कि Fy क्या होगा? इसका मतलब है कि Fy क्या होगा? 0 होगा, है ना. तो यहां पर आ जाएगा n sin अल्फा
n sin अल्फा इज इक्वल टू mg। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब बताइए n का जो कि हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट क्या है, n cos अल्फा, और यही फोर्स जो है सर्कुलर मोशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। बात सबको समझ में आ गई? यस सर। अब यहीं पे लगाइए Fr इज इक्वल टू m इंटू AR। Fr जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n cos अल्फा, और इनवर्ड है इसलिए माइनस में। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू AR। AR में R डबल डॉट तो जीरो हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर R। ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर R। तो यहां से आ जाएगा हमारा n cos अल्फा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R। इक्वेशन 2 हो गई। वी हैव टू फाइंड ओमेगा, so 2 by 1 कर दीजिए। So n will be cancelled, m will be cancelled. Omega is equal to under root g by r tan alpha। ओके, सो इस एंगुलर वेलोसिटी से वो घूमेगा। क्लियर बात सबको? यहां पर हम n cos n sin अल्फा इज इक्वल टू mg क्यों लगा पा रहे थे, और पिछले वाले क्वेश्चन में जो वर्टिकल पेंडुलम घूम रहा था उसमें वर्टिकल फोर्स जीरो क्यों नहीं कर पा रहे थे? ये क्लियर है सबको बात? क्योंकि यहाँ पर जो है पार्टिकल जो है सिर्फ सर्कल जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, तो वर्टिकल में कुछ नहीं हो। जबकि पहले वाले केस में जो टेंशन वाला था उसमें पेंडुलम में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल जा रहा है और ऊपर नीचे भी जा रहा है, तो वर्टिकल में भी मोशन हो रहा है। इसमें सर सिर्फ वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल की तरफ मोशन नहीं करेगा, इसलिए वो हाँ, जीरो। बिल्कुल सही कहा आपने। कर लिया सबने? यस सर। यस सर। नो सर। जिन लोगों ने कर लिया है वो लोग ट्राई कीजिए असाइनमेंट जिन लोगों ने कर लिया है वो ट्राई कीजिए असाइनमेंट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10। असाइनमेंट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो एक काम कीजिए, इन सबको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ओके, असाइनमेंट 2.3 क्वेश्चन नंबर होमवर्क में असाइनमेंट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 2 के बाद में फिर है 15, 19, 20, 21, 37। इनको आप होमवर्क में कर लीजिएगा, और ठीक है। ओके, और इसको भी आप होमवर्क में कर लीजिए। एक्चुअली आई हैव अनदर क्लास, ओके, सो आई हैव टू अर्जेंटली गो। सो आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मेरी एक अर्जेंट क्लास है। सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।
बाय। हेलो सर। हाँ जी, आपके डाउट सर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सर आई हैव वन क्वेश्चन बियॉन्ड दिस क्लास सर। डाउट आपके नेक्स्ट क्लास में लेंगे सर, हम अभी मेरी क्लास है अर्जेंट थोड़ा। ओके ओके।